So, good morning everyone once again, and let's start with our class. I think in the last class, what we have discussed so far, we were discussing elasticity of demand. I think. Hello, this is the topic we have done. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, uh, in the last class, let me remind something. Okay. We have discussed the elasticity of demand, that why do we need to study the elasticity, and how the elasticity is a better measure of quantum of change in relation to what do we call it, the slope coefficient. Okay, so elasticity is something more than the slope. Is that okay? And we have seen how to interpret the values of elasticity of demand. Now today we'll proceed further. आज हम आगे करेंगे, और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो इलास्टिसिटी को ही फर्दर प्रोसीड करेंगे हम लोग। देखो बेटे, लास्ट क्लास में हमने ये स्टडी किया कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, और ये हाउ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ बेटर मेजर ऑफ क्वांटम ऑफ चेंज देन द स्लोप कोफिशिएंट। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अब हम मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी विल डिस्कस नाउ। But before proceeding with the methods of measuring the elasticity of demand, I just want to discuss one more topic, that is the demand function. That means mathematical form of demand function. Mathematical form of demand function. Sir, Yes, please. sir, isn't this the first class? No, the classes have already been started. I think you have took the admission late. In which list you have been admitted to the course? Yes. Seventh sir. 7th लिस्ट ना, हाँ 7th लिस्ट से तो पहले क्लासेस शुरू हो गई थी ना बेटे, ठीक है। तो बाकी मैंने कुछ वीडियोस हैं वो शेयर किए हुए हैं, और जो पहले की क्लासेस हुई हैं उनके भी रिकॉर्डिंग्स मैंने कर रखी हैं, एंड probably I'll be sharing with you within a week, because they need to be edited first, then I'll be sharing with you all right, so you'll lose nothing. Sir, where have you shared all these classes ki recordings? On the email IDs of the students that has been provided by the college. Hello. Yes, sir. Okay, sir. Please share them. What's your name? What's your name, बच्चे? Paridhi. परिधि, लुक, अभी क्या है कि जो स्टूडेंट्स लास्ट तक एडमिटेड हुए उनकी लिस्ट अभी अपडेट होके आई नहीं है हमारे पास, यानी कि स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन की उनके ईमेल आईडीज़ क्या हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस माइट बी योर फर्स्ट क्लास, बट यू सी जो पहले क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और जो भी हमने डिस्कस किया है क्लास में, उन सब के वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। डोंट वरी, डोंट बोदर। Once I'll get the information about regarding your email ID and your phone numbers, I mean to say of all the students that have been admitted to this particular course, they all will get the videos. All right, मैं उनको दोबारा से भी भेज दूंगा जो पहले भेजे हैं, ठीक है। और जो क्लासेस हमारी हुई हैं उनकी जो रिकॉर्डिंग्स मैंने कर रखी हैं उनको भी एडिट करके आपके पास मैं भेज दूंगा, तो डोंट बॉदर अबाउट दिस, and you can come back to me anytime whenever you find any difficulty in understanding any of the topic. You can ask in the class cooking times as well as during your tutorial times. All right. Okay, sir. Excuse me, sir. हाँ, yes, who is this? Sir, Pratishtha Arya. हाँ, Pratishtha, yes, please. I am a new admission. I took admission last week. Mm-hmm. So, but I am not able to fill the form for GE. I want to take economics only. That is okay बेटे, बट वो जीई के फॉर्म के लिए आप कॉलेज ऑफिस में पता कीजिए, और या फिर आप कॉलेज की वेबसाइट जाएंगे ना, वेबसाइट पर होगा। So yes, I have checked, but there is no subject. Economics is not showing as a subject, sir. So do one thing, you write a mail to the, either to me you can write, or you can forward your mail. You can send me a SMS, okay? Send me a SMS, I'll share with you my email ID, okay? Then you send WhatsApp message or SMS, normal SMS. WhatsApp मैसेज भेज देना ना बच्चे, आजकल तो सब WhatsApp पे ही भेज रहे हैं ना, ठीक है। वो थोड़ा इजी वे ऑफ कन्वीनियंट वे भी है थोड़ा, ठीक है।
क्योंकि Okay, sir. डॉक्यूमेंट शेयरिंग भी हो जाती है इस पर कोई, ठीक है। तो आप Okay, sir. अपनी Thank पूरी you. कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है और जो भी आपकी ग्रीवेंस है वो मुझे व्हाट्सएप पे मत भेजो, वो आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे आप मुझे अपनी नाम और क्या कहते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो लिख कर भेजो। मैं अपना ईमेल आईडी भेजूंगा आपको, आप मुझे मेल करना, तो मैं मेल फॉरवर्ड कर दूंगा आगे जो भी आपकी ग्रीवेंस है, ठीक है, Okay, sir. कंसर्न Okay, sir. अथॉरिटीज को, ठीक है। सो लेट्स Okay, sir. स्टार्ट नाउ, ओके। So today we are supposed to start with the mathematical form of demand function. What does mathematical form of demand functions means? As we have discussed in our earlier classes, that we may model things in two ways, either graphically or through the variables or equations. We have discussed all this thing. तो जो डिमांड फंक्शन है उसको हम दो तरह से मैथमेटिकली, जो लीनियर डिमांड फंक्शन है, लीनियर डिमांड फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं। लीनियर मींस स्ट्रेट लाइन। लीनियर डिमांड फंक्शन का मतलब है स्ट्रेट लाइन डिमांड फंक्शन। हेलो, this seems not to be the straight line. Let me draw some straight line. Let me try and draw straight line. Suppose this is a straight line demand curve. It seems not to be the straight, but you assume this is a straight line, okay? हाथ से ऐसे ही बन रहा है। मीन्स जो लीनियर डिमांड फंक्शन है उनकी फॉर्म्स में बता रहा हूं, नॉन लीनियर को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रीजन बीइंग दैट इज आउट ऑफ योर सिलेबस और द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। तो जो नॉन लीनियर होते हैं, नॉन लीनियर का मतलब हो गया दे मे बी इन अ कर्व शेप, यू नो, there may be a demand curve which looks like something like this, or there may be a demand curve which would be something like this, something like this. This may be the shape of a demand curve. And as far as non-linear concern, non-linearity is concerned, probably this might be the shape. It all depends the data you are having, कि किस तरह का डेटा आपके पास है। यानी कि डेटा से मतलब है प्राइस, क्वांटिटी, डिमांडेड के कॉम्बिनेशन। ये इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये सारे नॉन लीनियर है। ये जो तीनों मैंने बताए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड फिगर, ये सारे के सारे नॉन लीनियर डिमांड फंक्शंस हैं। बट हम सिंप्लीफिकेशंस के लिए, थ्योरेटिकली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होता है, वी ऑलवेज ट्रीट द डिमांड कर्व टू बी द लीनियर। हेंस वट एवर आई एम डिस्कसिंग टुडे, आई विल बी डिस्कसिंग इन रिस्पेक्ट टू द लीनियर डिमांड फंक्शन, दैट मीन्स द स्ट्रेट लाइन डिमांड फंक्शन। इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, अब ये हमने ग्राफिकली बनाया, तो इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली, लीनियर डिमांड फंक्शन। दो तरह से कैसे? एक हम कहते हैं डायरेक्ट डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन, एंड द अदर वन इज द इनडायरेक्ट डिमांड फंक्शन। We can have the direct demand function, we can have the indirect demand function. Now the question is, what is the difference between the direct demand function and indirect demand function? Well, see, the direct demand function means when we express the quantity demanded as a function of price, this is the direct demand function. And when we express price as a function of quantity demanded, this is the inverse, indirect, or you can say the inverse demand function. Inverse demand function. Is that okay? Hello students? Yes, sir. ठीक है। यानी कि जब मैं क्वांटिटी को एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एक्सप्रेस करूंगा तो वो कहलाएगा डायरेक्ट डिमांड फंक्शन, और जब मैं प्राइस को एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी एक्सप्रेस करूंगा, दैट इज
the indirect or the inverse demand function, what do we call it? Is that okay? डाल लेना. Let us see ये let us see their mathematical forms. These are the general forms. ये दोनों कैसी forms हैं? General forms हैं. Means ये general forms हैं, यानी कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड. ये जनरल फॉर्म है इनकी दोनों की. ठीक है. अब आते हैं हम स्पेसिफिक फॉर्म. स्पेसिफिकली लीनियर डिमांड फंक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब आता है स्पेसिफिक फॉर्म. कि स्पेसिफिकली इन रिलेशंस को कैसे दिखाएंगे. तो अगर मैंने लिखा है डायरेक्ट डिमांड फंक्शन, direct demand function. Hello, are the students listening to me? Hello, Yes, students, sir. are you Yes, all sir. there? क्योंकि मुझे एक ही दो बच्चे की आवाज आ रही है, बाकी किसी की आवाज नहीं. I don't know what's happening. ठीक है. So if we'll see the direct demand function, what does this mean? Let us see the specific form of demand function. Let us see the specific form. The specific form of direct demand function is that quantity demanded equals A minus B Px. Let us treat this as the demand function, where quantity demanded is expressed as a function of price. Quantity demanded is a function of price. Now जब हम इसको देख रहे हैं quantity demanded as a function of price, so what does this mean? Let us explain which part or variable in this equation represents what. This is nothing but quantity demanded. Quantity demanded. This is nothing but per unit price. This A is nothing but what do you call it? Intercept. And this B point is nothing but reciprocal of the slope. This B point is nothing but reciprocal of the slope. This B point is nothing but reciprocal of the slope. Now let us see what does this mean. Suppose if we draw the demand curve, let's draw a demand curve. If I draw the demand curve something like this, suppose this is the price axis, this is the quantity axis, and let's assume we have drawn this is the demand curve. So this and this. Now look, अब इस डिमांड कर्व में क्या है बेटे. इस डिमांड कर्व में ध्यान से देखिए, इस डिमांड कर्व पर अब हम इन सब पॉइंट्स को एक्सप्रेस करेंगे. तो जो क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी, ये सारे पॉइंट्स क्वांटिटीज के हो गए, ये सारे पॉइंट्स. हेलो स्टूडेंट्स, ये सभी पॉइंट्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में हैव एनी पॉसिबिलिटी ऑन दीज पॉइंट्स. कोई कुछ भी हो सकती है. ठीक है. और इसी तरह जो ये प्राइस है, तो ये पूरी की पूरी जो एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस जो है, ये रिप्रेजेंट करती है प्राइसेस को, कि दीज आर द पॉसिबल प्राइसेस. इज दैट ओके?
Now let us see Yes, sir. what does A point and B point represents. A point is what? Let us write the equation again. Qx is equals to A minus B px. अब ये Qx है और ये A माइनस बी पी एक्स है. आप लोगों ने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर पढ़ा है इन टू वेरिएबल्स. हेलो, Yes, sir. इस लीनियर इक्वेशन में क्या होता था? जो इक्वेशन होती थी वो हमारी ऐसी होती थी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लेट अस अज्यूम 10. ठीक है. अब उस इक्वेशन में हम क्या करते थे कि भाई x और y की वैल्यू निकालनी है या x की वैल्यू निकालनी है. सपोज करो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो उस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई ऐसे कर लेते थे 10 माइनस 2x और फिर हम y इज इक्वल्स टू लिखते थे 10/3 माइनस 2/3x. ऐसे ही लिखते थे. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. 10th क्लास का मैथमेटिक्स याद है ना? सब बच्चे पढ़ के जाते हैं Yes, sir. चैप्टर, क्योंकि 10th Yes, में sir. इसका क्वेश्चन आता है 6-7 नंबर का. हमारे टाइम में तो आता था, पता नहीं आजकल आता है. तो सब बच्चे इस चैप्टर को जरूर पढ़ते थे. तो अब यहाँ पर जैसे ही जैसे आप x की वैल्यू पुट करोगे, विल गेट द वैल्यूज ऑफ y, रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ y. अगर आप इसको ऐसे टेबुलर फॉर्म में करें तो 10/3 माइनस 2/3x, दिस इज y, सॉरी 2/3x, दिस इज द इक्वेशन. सपोज आई अज्यूम x टू बी 0, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ y? 10/3, क्योंकि x 0 होगा तो ये 0 बन जाएगा. इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. ठीक है. तो ये पार्ट क्या होता है? ये इंटरसेप्ट हो गया. यानी कि इंटरसेप्ट मतलब कि y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 0 हो. ठीक है. ठीक उसी तरीके से यहां पर क्या है कि अगर मैं px की वैल्यू 0 पुट करूं कि प्राइस की वैल्यू कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांडेड होगी, तो अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैं यहाँ पर px लिखूंगा और qx को मैं लिखूंगा a माइनस बी पी एक्स. ठीक है. अब यहाँ पर अगर मैं प्राइस की वैल्यू 0 एज्यूम करता हूँ तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाएगी? a. ठीक है ना. तो इसका मतलब a क्या है? मेरा इंटरसेप्ट. कौन सा इंटरसेप्ट है? हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट. कैसे हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट? कि जब प्राइस की वैल्यू 0 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है. तो इसका मतलब a जो मेरा है वो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है. ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है a. या a जो क्वांटिटी होगी वो यहां से यहां तक जो ये पूरी क्वांटिटी है ये आ जाएगी. जैसे a की वैल्यू अगर मैं लिख दूं 100, तो इसका मतलब जब 0 प्राइस है तो 100 यूनिट्स डिमांडेड होंगी मार्केट. यानी कि 0 प्राइस पर 100 यूनिट्स बाय करने को तैयार हैं लोग. 100 यूनिट्स तक बाय करने को तैयार है. इज दैट ओके? दीज आर द पॉसिबिलिटीज. तो ये हो गया क्या? ए हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट. नाउ लेट्स कम टू द बी पॉइंट. व्हाट डज बी रिप्रेजेंट्स ओवर हियर? बी, वी हैव रिटन दैट इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप. In the last class or in the previous classes we have discussed how to measure the slope of a demand curve. Slope of demand curve क्या था बेटे? पिछली क्लास में हमने किया था डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू. Yes or no? Look, let me show you what we have done in the last class. See, slope of a demand curve. क्या लिखा था हमने? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी. Are you getting my point? Hello? Students? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. तो हमने लिखा था स्लोप होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू. अब आप लोग 12th क्लास पास करके आए एंड प्रोबेबली आई होप एवरीबडी हैज स्टडीड द मैथमेटिक्स बिकॉज दैट इज द प्री रिक्विजिट कंडीशन इन एडमिशन टू द बीकॉम ऑनर्स और इन एनी अदर ऑफ द कोर्सेज, इजंट इट? मैथमेटिक्स किस किस ने पढ़ा है 12th क्लास तक? यस स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, पढ़ा sir. सर. पढ़ा है Yes, ना sir. मैथमेटिक्स? Yes, sir. तो आपने Yes, sir. डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं Yes, sir. इस फंक्शन को प्राइस की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? Minus डी क्यू B. एक्स अपॉन में डी पी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट और बी इज रिप्रेजेंटिंग क्यू एक्स अपॉन डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स एंड स्लोप इज डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा क्यू एक्स.
if I'll take the reciprocal of the slope, this is what we get. Yes or no? Yes, sir. चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस. तो बी का मतलब क्या है कि यूनिट चेंज इन एक्स. सपोज करो इस ए पॉइंट पर है, सॉरी ये ए मैंने यहां लिखा है, तो लेट अस टेक दिस समथिंग एल्स. सपोज इस पॉइंट पे ये जेड पॉइंट है. ये जेड पॉइंट पर क्या है, प्राइस है पी जेड और क्वांटिटी है क्यू जेड. ठीक है. और ये जे पॉइंट है. जे पॉइंट पर क्या है, प्राइस है पी जे और क्वांटिटी है क्यू जे. ठीक है. तो अब डेल्टा पी एक्स ये हो गया और डेल्टा क्यू एक्स ये हो गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है बेटा ये? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वेरिएशन है, ये जो बॉक्स में बता रहा हूँ कि ये इतना चेंज क्वांटिटी में होगा, इतना चेंज प्राइस में होने से, या क्वांटिटी में इतना चेंज होगा, प्राइस में इतना चेंज होने से. तो ये जो इनके बीच का जो रेसिप्रोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है क्या, माइनस बी. माइनस साइन किस लिए किया है रिप्रेजेंट? माइनस लिए क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड एज पर लॉ ऑफ डिमांड इनवर्सली रिलेटेड होते हैं. इज दैट ओके? So that's why the slope is negative, and if the slope is negative then its reciprocal would also be negative. Yes or no? If the slope is the negative then the reciprocal of the slope will also be negative. तो ये जो B पॉइंट है, ये B पॉइंट क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, कि जो स्लोप है उसको रेसिप्रोकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है B. इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया है? हेलो सर एक बार और Yes, Sir, sir. can you please explain it once again? which point? This slope one or the reciprocal? Yes, sir. The reciprocal one and the slope one. Suppose this is the slope. This is the slope. Is this clear to all of you? Hello? Yes, sir. यस सर. ठीक है. और इसका अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या आएगा, डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स. ठीक है. Yes, sir. तो इसकी जो रेसिप्रोकल वैल्यू है वो आ गई डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स, जो कि यहाँ पर क्या है, बी है. ये हमने करके देखा, अभी डिफरेंशिएट किया था तो यही आई थी ना वैल्यू बी. Yes, sir. ठीक है. तो इसका मतलब बी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप, क्योंकि स्लोप है डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा क्यू एक्स और बी की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स. तो ये रेसिप्रोकल हो गया ना स्लोप का. तो स्लोप क्या होगा यहां पर, स्लोप हो जाएगा -1 अपॉन बी. इजंट इट? Yes, sir. स्लोप क्या हो जाएगा, -1 अपॉन बी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो बेटे, Yes, sir. बेटे समझ में आया आप लोगों को? स्टूडेंट्स, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस. व्हाट्स हैपनिंग, यू नो? आर यू देयर इन द क्लास और नॉट? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. यस सर. I have seen that there are 53 students Yes, sir. that have joined, you know, but Yes, sir. the voice is of very, I heard only 2 or 3 students. What all these students are doing, I don't know. Anyways, let's come to our point. So, तो ये हो गया -1 अपॉन बी, स्लोप हो गया. तो अब इसको ये समझ में आ गया कि अब इस फंक्शन में कौन सी वैल्यू क्या है. तो लेट्स ड्रॉ मैथमेटिकल विद द मैथमेटिकल वैल्यूज. लेट अस सी हाउ दिस फंक्शन वर्क्स. सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस. Let's take an example. Suppose we have been given that there is a demand function. There is a demand function, and that particular demand function is something like Q equals 100 minus 10p. Let's assume this is the demand function. अब ये डिमांड फंक्शन हमें दिया है कि
Q इक्वल्स 100 माइनस 10 की। तो अब इसको अगर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो पहले तो मैं ये कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट कर लूँगा। हेलो, यहाँ P की वैल्यू अज्यूम करूँगा, यहाँ Q की वैल्यू लिख दूंगा 100 माइनस 10 की। अब मैं P की वैल्यू अज्यूम करूँगा, अगर 0 है तो क्वांटिटी होगी 100, ऐसी 1 है तो क्वांटिटी हो जाएगी 90, 2 है तो क्वांटिटी होगी 80, एंड सो फोर्थ। सिमिलरली व्हेन द प्राइस रीचेस 10, the quantity demanded would reach 0. Is that okay? Hello? Yes, sir. ठीक है। Yes, अब जब मुझे इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, प्लॉट करना है, तो ये देखो ग्राफिकली प्लॉटिंग कैसे होगी इसकी। let's see. This is the price axis, this is quantity axis. So when the price is 0, the quantity demanded is 100. Let us assume this is the 100 point. Okay, this is 1 point. Then we can plot different points. हम ऐसा भी कर सकते हैं, different points हैं 1 रुपी पर 90, फिर 2 पर इतना, different combination बना दें। एक दूसरी तरह से हम सिंप्लीफाइड वर्जन ऐसे भी कर सकते हैं कि जब प्राइस 10 होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड 0 हो जाएगी। प्राइस 10 होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड 0 हो जाएगी। ये दो इंटरसेप्ट पॉइंट आ गए, ये हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट हो गया जो कि A है हमारे डिमांड फंक्शन में। A की वैल्यू 100 है, यानी कि ये A है, और ये B है, ये B की वैल्यू है, ये B हो गया। इज दैट ओके? तो अब हमने दोनों इंटरसेप्ट निकाल लिए, तो इनको अगर मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूँ तो आई विल गेट दिस डिमांड फंक्शन। इज दैट ओके? आई विल गेट दिस डिमांड फंक्शन। तो ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट इसी पर कॉरस्पॉन्ड करेंगे, यानी कि मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, बिकॉज वी हैव बीन डिस्कसिंग द लीनियर डिमांड फंक्शन। तो इस डिमांड फंक्शन की इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10। इज दैट ओके? हेलो, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Now let us see. This was all about the inverse demand, direct demand function, and let us see the same thing in case of inverse demand function. Let us see. Excuse me, sir. Yes, please. What's your name? Sir, Manish. Manish. हाँ, बोलो Manish. Sir, if there is an inverse relationship between the demand and price, then why is the graph not an rectangular hyperbola and why a straight line? Well, Manish, I think you have joined the class late. We have discussed all these things that we have been discussing the linear demand functions, not the non-linear demand functions. All right. The another thing is, even if there is an inverse relationship, that does not ensure the rectangular hyperbola shape. We have been representing the inverse relationship. Okay. Inverse relationship is a different thing and rectangular hyperbola shape is a different thing. We will be discussing that further, but इस पॉइंट पर हम इसको यही इतना मैं कहूँगा इसको, ठीक है, कि किसी चीज़ की शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना एक अलग है, अलग बात है, और इनवर्स रिलेशनशिप होना वेरिएबल्स के बीच में अलग बात है। इनवर्स रिलेशनशिप डज नॉट एंश्योर दैट द शेप ऑफ द पर्टिकुलर कर्व वुड बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इज दैट ओके? Okay, sir. Thank you. ठीक है। ये कहाँ पढ़ा है आपने कि अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी शेप? Sir, when y is inversely proportional to x, then नहीं, प्रोपोर्शन का तो हमने बात करी नहीं ना अभी, कि वो प्रोपोर्शनली रिलेटेड है या नहीं है, वो तो बात हमने अभी की नहीं है। हम तो अभी सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि भाई इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड में, और इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है लीनियर डिमांड फंक्शन के केस में। ये मैंने स्पेसिफिकली बताया आपको शुरू में, ठीक है? okay, sir. Okay, sir. Thank you. You are mixing two different things, so that's why you are confused, you know. We have been discussing the linear demand function. Yes, we have the linear, that means the straight line demand function we will be discussing. We will not discuss the non-linear forms of demand functions as they are not in your syllabus. Is that okay? However,
when I represent the degrees of elasticity of demand, there I would be discussing the rectangular hyperbola shape and quote you the reason why that particular shape is rectangular hyperbola. There we will discussing all this thing. Okay, but for the time being, we have been discussing linear demand functions as per your syllabus and their probable mathematical forms and direct as well as general forms. This is what we have been discussing. All right. Okay, sir. Let me start once again. Okay. I don't know what I was pointing out. मैं क्या बता रहा था आप लोगों को? Hello. So this is the direct demand function. This is the form of direct demand function. Let us see now the inverse demand function. Let us see the inverse demand function. इनवर्स डिमांड फंक्शन और इनडायरेक्ट डिमांड फंक्शन. अब इसकी हम स्पेसिफिक फॉर्म देखेंगे. तो अब इनवर्स डिमांड फंक्शन में क्या होता है कि हम प्राइस को एक्सप्रेस करते हैं एज अ क्वांटिटी डिमांडेड. तो देखो अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, डेराइविंग इनवर्स डिमांड फंक्शन from direct demand function. Are you getting my point? Hello, students? Yes, sir. Now we will be discussing, we will be deriving the inverse demand functions from the direct demand function we have. कि जो direct demand function है उससे अब हम इनवर्स डिमांड फंक्शन को डेराइव करेंगे. ठीक है जी. कैसे करेंगे? लेट अस सी. सो वी हैव दिस फंक्शन qx इज इक्वल्स टू a माइनस bpx. नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्म इन इनवर्स डिमांड फंक्शन इज we are supposed to express price as a function of quantity demanded. Got it? So if we'll apply simple mathematics and take these values to this side, that side, then we will have something like this, qx minus a equals minus bpx, or you may write it like this, minus bpx equals qx minus a, or px equals minus qx upon b. Minus minus will comes out to be the plus a upon b, and probably if we further simplify this thing, we will have px is equals to a upon b minus 1 upon b into qx. Can we write it like this? Hello? Yes, sir. So this is the inverse demand function. This is the inverse demand function. Inverse demand function. Now let us represent the variables. What is this? This is the per unit price. This is the per unit price. This is again the quantity demanded. Okay, now what is this? Now this is vertical intercept. This is also the intercept, but now in this case this is vertical intercept. Now here what is this? This we have already discussed. This has become now the slope of the curve. This is not the reciprocal of the slope. This is the slope of the curve. Look at this. Look here. मैंने क्या बोला कि अगर रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप b है तो स्लोप क्या होगा? -1/p, -1/b. यस और नो? अब यहां पर जो -1/b है ये स्लोप का काम कर रहा है. अब ये स्लोप है, अब ये रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप नहीं है, ये स्लोप है.
क्योंकि ये बी रेसिप्रोकेट हो गया है। ये म्यूट कर लीजिए, किसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, किसके यहाँ से आवाज़ आ रही है प्लीज़। हाँ, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप नहीं है, ये स्लोप बन गया अब यहाँ पर। इज दैट ओके? इसी डिमांड फंक्शन को डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई कई बार ऐसे भी लिखा हो सकता है कि पी एक्स इज इक्वल्स टू है सी माइनस डी नहीं लिखता हूँ, लेट मी राइट समथिंग एल्स, माइनस स्मॉल जेड क्यू एक्स। तो अब अगर मैंने इस फॉर्म में इस डिमांड फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है कि C इज इक्वल्स टू है A बाय B। ठीक है, लेट कर लो, लेट A बाय B इज इक्वल्स टू C एंड 1 by B is equals to Z. Then we can write this way also. Is that okay? Hello? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. पर इस चीज को ध्यान में रखो, जब कभी भी प्राइस को एज अ एक्सप्रेस किया गया होगा क्वांटिटी डिमांडेड के टर्म्स में, उसको हम इनवर्स डिमांड फंक्शन बोलेंगे। उसको हम कैसा डिमांड फंक्शन बोलेंगे? इनवर्स डिमांड फंक्शन बोलेंगे। इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है, अब इसको भी हम मैथमेटिकली करके देख लेते हैं। अगर हम अपने उसी सर डिमांड जिसमें क्वांटिटी क्या होगी, क्या था, क्या बोला था आपने, एक बार दोबारा से रिपीट कर देंगे प्लीज। क्वांटिटी क्या होगी? मैंने तो कुछ बोला नहीं क्वांटिटी को। मैंने बोला है कि जब कभी भी अगर प्राइस को एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एक्सप्रेस किया गया होगा तो उस डिमांड फंक्शन को हम इनवर्स डिमांड फंक्शन बोलेंगे हमेशा। दिस इज व्हाट आई हैव सेड। ओके सर, ठीक है। तो अब इसका जैसे हमने मैथमेटिकली जो डिमांड फंक्शन लिया था उसी को मैं ऊपर जो डायरेक्ट लिया था उसी को हम इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आई थिंक दिस वाज आवर डिमांड फंक्शन 100 माइनस 10p। दिस वाज द डिमांड फंक्शन इनवर्स। ये डायरेक्ट था हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्म में था, डायरेक्ट फंक्शन था। अब इसी को हम इनवर्स में बनाते हैं तो क्या बनेगा? दिस विल कम्स आउट टू बी q माइनस 100 इज इक्वल्स टू माइनस 10p और p इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10q और p इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 बाई 10q। इज दैट ओके? तो ये हमारा Yes, क्या sir. हो गया? इनवर्स डिमांड फंक्शन। इनवर्स डिमांड फंक्शन। दिस इज हाउ वी कैन ड्राइव द। अब देखो, अगर हमें इनवर्स दिया हो तो यानी कि डायरेक्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनवर्स को, और इनवर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट में। भाई अब इसको अगर एज अ क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर दो एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस तो वो डायरेक्ट फॉर्म में चला जाएगा। अगर सपोज ये दे रखा है और हमें इसे कन्वर्ट करना है डायरेक्ट फॉर्म में, तो इनवर्स को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट को इनवर्स में। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, तो दोनों तरीके से ही वी कैन प्रोसीड। Now we will see its graphical presentation, how this will look like, graphically. If we have this equation, whether the graph is going to change or not. Let us see that. So for drawing the graph, what do we want? Let me write it once again. So we have inverse demand function. We have inverse demand function, something like p equals 10 minus 1 upon 10q. This is the demand function, or more simply we can write 10 minus q upon 10. This we can write it like this. This is one and same thing. It doesn't have different meanings. This is one and same. So let's draw some points. Let's assume the quantity demanded, various quantity demanded, and at various quantity demanded, what would be? Oh, sorry, this is 10. What would be the price? Suppose if the quantity demanded is 0, the maximum price chargeable is 10 units. Then if quantity demanded is, let us assume 10 units, then the price charge would be probably 9, I think.
Am I right? Suppose I substitute 10 over here, then 10 cancel out with 10, there would be 1. 10 minus 1 is 9. Now suppose if we have 20 as a quantity demanded, then the price would be 8 probably, I suppose. Suppose I substitute 20 to 0, 0 cancel, 10 minus 2 again comes out to be the 8. Hello? Yes, sir. Similarly, we can assume when the quantity demanded reaches 100, then the price would be 0 in that case, because 10 tens are 100 and 10 minus 10 comes out to be the 0. So again we got these two intercepts. If you recall the things, let me draw this curve first. This is quantity, this is price, and when the quantity is 0, price is 10. Quantity is 0, then the price is 10. Let's suppose this is the 10, this is this point. So this is vertical intercept, which is nothing but this A by B, I suppose. C is equals to A by B. This is the vertical intercept, and this is horizontal intercept. And let's probably, this is the point 100. When we join these 2 points, let's join these 2 points with the straight line, we'll get the same demand curve. See, we have this demand curve only, which has the vertical intercept as a 10 and horizontal as a 100. This is the same demand curve we have drawn earlier. Look, same 10, 100. Hello? Yes, sir. Did you get it? So again, now if what does this mean? You see, let us see. This means this is the C point, or we can write it like this. Let's write. C is equals to A by B, which is equals to 10. This is the vertical intercept. Okay, and this is A, this is horizontal intercept. And again the same thing we can see, suppose this is Z point and this is J point. At Z point we have PZ and this is Z, and this is QZ. At J point we have this is PJ, and once again this is QJ. Now this is nothing but delta P, and this is nothing but delta Q. X is may write substitute because the quantity is X, sorry, the commodity is X. So this is the gap. Once again, this is nothing but delta P upon delta Q. Means we can look these things either ways. Either ways we can look for these things. We can treat it in case of inverse demand function, this is the slope, and in case of direct demand function, that would be the reciprocal of the slope. So nothing has changed as much apart from the mathematical equation. Even the mathematical equation is same, but the way we are looking at this demand curve has changed only. Now in this case we have been looking at the price as a function of quantity demanded in case of inverse demand function, and in case of direct demand function we have been looking at the quantity as a function of price. That's it. That is only the difference. Otherwise we have been representing one and the same relationship between the price and quantity demanded, unless until the values of A and B's are changing. Hello?
यस सर। ठीक है। हाँ, यस सर। किसी ने कोई सवाल पूछना अब तक जितना करा है उससे रिलेटेड, किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर। यस स्टूडेंट्स, hello, do you want, is there anybody who just want to ask something? Yes, No, sir. so let's proceed further then in that case. So we have discussed now the inverse and the direct demand functions. Let's discuss further. Well, the next topic of discussion is the methods of measuring elasticity of demand. The next topic is methods of measuring elasticity of demand. Methods of measuring elasticity of demand. कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं. So let me write methods first and we'll discuss all of them one by one. The first method is to discuss with you is the proportionate method. The proportionate method, or sometimes called as percentage method. The another method is point method. Then the next method is something called total expenditure method. And probably there is one more method. That's not exactly the method, but we treat it as a method also. That is something called graphical method. Graphical method is nothing but you can see the graphical representation of these two things. इन दोनों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकल मेथड है. यू कैन से treat it like this. So and there is one more method. Let me share with you one more method apart from उसमें आर्क मेथड भी था. yes, don't worry, I'm मिड पॉइंट quoting this. Yes, hold on. I'm discussing with you. The next method is something called arc method. Arc method, or you can write average price method. Or this is also known as midpoint method. Not exactly the midpoint method. Midpoint method is, yes, you can write it something like midpoint method. Somewhere I have seen that it's also written as midpoint method. So midpoint method is different method, or average price method. Then we have all these methods. So first I'll discuss what is the difference between the proportionate method and the point method. Then I'll discuss what are the limitations to the proportionate method or percentage method, and how the arc method or average price method is substituting somehow the proportionate method.
that we will discuss, and then we'll discuss these two methods one by one. So first of all, let us discuss the proportionate or percentage method. Is that okay? The first one is the proportionate method. सर हाँ, यस प्लीज। क्या सर नाम थोड़ा है? ऊपर स्लाइड करना। क्या नाम है आपका? विशेष कुमार। हाँ, कोई सवाल पूछना है विशेष? सर थोड़ा ऊपर स्लाइड कर दो। ये लो, ऊपर हो गया। बोलो बोलो अब। नोट करना। अरे भाई, ऐसे नोट करो। आप अपनी स्पीड को ऐसे मेंटेन कीजिए, जैसे जैसे मैं साथ लिख रहा हूँ तो आप भी साथ साथ उसे नोट करते जाओ। मैं कोई इतना फास्ट लिख भी नहीं रहा हूँ और इतनी फास्ट मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ ही ना आए, या आप पीछे छूट गए और मैं आगे निकल गया हूँ बोलते हुए। ठीक है ना? अपनी स्पीड को इस तरह से मेंटेन करो। मैं साथ साथ बड़ा नॉर्मल रूटीन से और नॉर्मल स्पीड में मैं चल रहा हूँ, तो आप भी अपनी स्पीड ऐसे मेंटेन कीजिए। ठीक है? ओके सर। हाँ, इसको जल्दी से नोट कीजिए क्या रह गया आपका, क्योंकि ऐसे अगर हर बच्चा एक बच्चा बोलने लग गया तो फिर तो नोट करते रहो आप लोग। ऐसे स्पीड अगर मेंटेन नहीं करोगे तो एक एक स्टूडेंट के लिए पीछे करते जाएंगे, तो फिर वो जो नॉर्मल स्पीड से हमारी स्पीड कम हो जाएगी सिलेबस को कवर करने की। ठीक है? सर हो गया। अगर ऐसे कुछ स्किप हो जाता है तो ये रिकॉर्डिंग जब आपके पास आएगी, यू मे नोट इट डाउन दैट टाइम ऑल्सो, बट मेक एन हैबिट कि आप साथ साथ नोट करोगे, दैट वुड बी मच बेटर। क्योंकि रिकॉर्डिंग मिलने में आपको हो सकता है 2-4 दिन लग जाएं। ठीक है? प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड। अब देखो बेटे, जो प्रोपोर्शनेट मेथड है, परसेंटेज मेथड है, इसमें हम इलास्टिसिटी को कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं क्या फॉर्मूला लिखते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड divided by percentage change in price. Is that okay? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. इसके बाद हम क्या करते हैं? Let us see. इसके बाद हम क्या करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज चेंज हम कैलकुलेट करते हैं समथिंग कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी को हम पहले लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को हम पहले ले लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को हम कैसे लिखेंगे? Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में 100। What does this mean? This means the new quantity minus the previous quantity or the original point divided by original point into में 100. This is how we calculate the percentage change in quantity. The same logic will apply to the price also. Percentage change in price. अब percentage change in price क्या हो जाएगा? P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100। ठीक है? देन हम आगे क्या करते हैं? फिर आगे हम इसको डिफाइन करते हैं ऐसे कि इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो गई? Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में 100 होल डिवाइडेड बाय P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100। दिस इज हाउ विल राइट। हेलो? Yes, sir. So 100 will cancel out, and 100 will cancel out, and we'll have this one. And we'll have this. We can have this. Q1 minus Q upon में Q
इनटू में, अभी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, p अपॉन में p1 माइनस p, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट q1 माइनस q इज डेल्टा q एंड p1 माइनस p इज डेल्टा p। अब ये लेट करने के बाद फॉर्मूला हमारा बन गया डेल्टा q अपॉन में q इंटू में p अपॉन में डेल्टा q। और इसको अगर और सिंप्लीफाइड हम करते हैं तो E इज इक्वल्स टू हो गया p अपॉन में q इंटू में डेल्टा q अपॉन में डेल्टा q। इज दैट ओके? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें Yes. फॉर्मूला हम यूजुअली ऐसे डिराइव करते हैं, जिसको हम परसेंटेज मेथड बोलते हैं। अब इस परसेंटेज मेथड में अगर आप ध्यान से देखो तो हमें परसेंटेज चेंज निकालने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। लेट अस सी, so this is price, this is quantity, and this is the demand curve, straight line demand curve. Let's assume this is straight line demand curve. This is A point, this is B point, this is the AB demand curve. अब आपने 2 पॉइंट्स हैं Z और ये J, 2 पॉइंट है। इन 2 पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी निकालनी है। तो आपके पास सपोज करो ये बेस प्राइस हो गया, ठीक है, लेट अस अज्यूम, और ये न्यू प्राइस सॉरी ये बेस पॉइंट हो गया, सॉरी नॉट बेस प्राइस, दिस इज बेस पॉइंट, बेस पॉइंट हो गया एंड लेट्स ट्रीट इट एज द न्यू पॉइंट। ये न्यू पॉइंट हो गया, ये बेस पॉइंट हुआ, ये न्यू पॉइंट हुआ। तो बेस पॉइंट के हिसाब से ये बेस प्राइस हो गया और ये बेस क्वांटिटी है, ठीक है। इसको हमने ले लिया बेस प्राइस, ठीक है, एंड इसको हम ले लेंगे बेस क्वांटिटी, ठीक है। जब हम इस जे पॉइंट पर हैं तो ये क्या हुआ, ये हो गया एक तरीके से पीजे, ये हो गया न्यू प्राइस और ये हो गई न्यू क्वांटिटी, ठीक है। ये बेस पॉइंट है, ये न्यू पॉइंट है। इज दैट ओके? हेलो, ठीक है। Yes, sir. अब सपोज करो हम एज अ पॉलिसी मेकर सोचते हैं, एज अ पॉलिसी मेकर आप सोचिए कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आपको किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में आपको इकोनॉमिक एनालिस्ट या इकोनॉमिक एडवाइज़र की जॉब मिली है, ठीक है, और आप एज एन इकोनॉमिक एडवाइज़र या तो गवर्नमेंट को या कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में, फील्ड में, फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं और आपसे पूछा जाता है कि भाई हमें इलास्टिसिटी मेजर करनी है कि हमारे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी क्या है। तो आप कहोगे ठीक है जी, मुझे डेटा दे दीजिए प्राइस क्वांटिटी का, मैं बता दूंगा क्या है। इजंट इट? दिस इज व्हाट यू विल सी, यू विल से दिस इज व्हाट योर रिप्लाई वुड बी, यस? यस सर। ठीक है। Yes. तो अब कंपनी ने कहा लीजिए मैं डेटा दे रहा हूं कि पिछले साल हमने जो प्राइस हैं वो ये 100 थे यहाँ पर, या मान लीजिए जो भी कुछ थे प्राइस ये थे, फिर हमारे प्राइस चेंज होकर ये हुए, तो जब ये प्राइस थे तो हमारी क्वांटिटी ये थी, ये प्राइस थे तो हमारी क्वांटिटी ये थी। यानी कि जब आपके पास 2 डेटा पॉइंट हैं तो आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे हो इस परसेंटेज मेथड से, क्योंकि आपको डेल्टा क्यू चाहिए और डेल्टा पी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब हो गया कि परसेंटेज मेथड में अगर हम कैलकुलेट करते हैं इलास्टिसिटी, तो परसेंटेज मेथड विल सजेस्ट इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया?
percentage method will suggest elasticity between 2 points. Yes or no? 2 पॉइंट्स के बीच में कमोडिटी की, किसी भी कमोडिटी की इलास्टिसिटी कैलकुलेट हम कर सकते हैं किसके हिसाब से? परसेंटेज मेथड के हिसाब से। पर सपोज करो अगर मुझे इसी पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर करनी है, या इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर करनी है, या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर करनी है, मुझे ये पॉइंट में ले लेता हूं के। सपोज करो मुझे के पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर करनी है, क्योंकि रियलिटी में क्या होता है, सपोज ईयर 2021 आ गया ना, 2021 है या 2020 था सपोज करो, इस साल किसी कमोडिटी के प्राइस रहे सपोज करो पीजेड या पीके मैं ले लेता हूं, लेट अस टेक द एग्जांपल पीके एंड द क्वांटिटी वुड बी क्यूके। अब प्राइस रहे पीके और क्वांटिटी मांडेड रही क्यूके। अब वो कह रहे हैं भाई इस साल हमारे प्राइस में बदलाव नहीं आया। अब हमें मेजर करना है कि भाई हम कितना प्राइस बदलें तो कितनी क्वांटिटी चेंज होगी। अब उनके पास तो इस साल का यही डेटा है, सिर्फ एक पॉइंट है। अगर रियलिटी में भी आप देखोगे तो हम पूरे के पूरे, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि एज अ कंज्यूमर और एज अ बायर हम अपने पूरे के पूरे डिमांड कर्व पर फंक्शन नहीं करते हैं, हम उस डिमांड कर्व के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होते हैं अपने डिमांड कर्व। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? ठीक है, तो हम किसी पॉइंट पर होते हैं। तो जब हम किसी पॉइंट पर हैं तो इस पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी मुझे चाहिए, मुझे तो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी चाहिए। अब परसेंटेज मेथड मुझे क्या करेगा कि भाई मुझे जब तक मेरे पास 2 पॉइंट नहीं होंगे आई विल बी अनेबल टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी। इज दैट ओके? हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. But the question is there any way so that we can calculate the elasticity at that particular point? So let us see the way out. Here comes the point method into the picture. Here comes the point method into the picture. Now comes the point elasticity. अब पॉइंट इलास्टिसिटी में क्या है कि फॉर्मूला यही है, E इज इक्वल्स टू पी अपॉन में क्यू इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। फॉर्मूला देखो वही है, सिर्फ फर्क कितना है, वहां हमने लिखा E इज इक्वल्स टू पी अपॉन में क्यू इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, यहां मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। फॉर्मूला यही है पॉइंट मेथड का भी, बट फर्क सिर्फ कितना है कि ये जो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी है ये निकाला है between 2 points through algebra। मैथमेटिक्स पढ़ के आए हो ना आप सभी लोग, थ्रू algebra। और ये निकाला है हमने चेंज थ्रू कैलकुलस। हेलो, यस सर। थ्रू कैलकुलस, यानी कि ये जो स्लोप हमने निकाला है थ्रू कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस में हम स्लोप मेजर कर सकते हैं एट अ पॉइंट, और अलजेब्रा में हम स्लोप मेजर कर सकते हैं बिटवीन पॉइंट्स। इज दैट ओके? तो इसलिए क्या है, कैलकुलस इज बीइंग यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग। यानी कि जब मैं ये डिमांड फंक्शन लिख रहा हूं यहां पर, सपोज करो मैंने लिखा डिमांड फंक्शन q इज इक्वल्स टू a माइनस बी पी, तो मैंने डिफरेंशिएट किया डी क्यू अपॉन डी पी विद रिस्पेक्ट टू p, तो मेरे पास आ गया स्लोप माइनस, ये आ गया। तो ये जो b मैंने कैलकुलेट किया है ये थ्रू कैलकुलस किया है, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन with respect
टू पी, प्राइस के रिस्पेक्ट में करनी है। अगर मान लीजिए मुझे डिमांड फंक्शन ये देखा है, प्राइस इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस 1 अपॉन बी क्यू, तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट फंक्शन with let me write it like this, short form, with respect to q, so what I'll get dp upon dq, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/b। तो यहाँ ये जो मैंने डिफरेंशिएट करके निकाला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, यहाँ मैंने कैलकुलस को यूज किया है। किसको यूज किया है, कैलकुलस को। तो जब मैं ये कैलकुलस यूज कर रहा हूं तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट मेथड, और जब मैं अलजेब्रा यूज कर रहा हूं दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकालने के लिए, तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। तो ये बन जाएगा प्रोपोर्शनेट मेथड, हाउएवर द फॉर्मूला इज सेम, और ये बन जाएगा क्या, पॉइंट मेथड। However, the formula is same. Only the technique of measuring the slope is changing, you know, and that is what the point elasticity, yeah, point method means, and that is what the percentage method means. That is the difference between the point and the percentage method. Is there any doubt? Yes. Hello. Hello, students. Yes, No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटे समझ आया ये, Yes. ठीक है। Yes, sir. तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ आएगा, पॉइंट मेथड और परसेंटेज मेथड में डिफरेंस क्या है। लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। Now there is another limitation of percentage method, and that limitation leads to the use of what do we call it, the arc method. So first I'll discuss with you the limitation of percentage method. Once again, and then we'll proceed to the arc method. Let's come to the point that in percentage method what is happening, you see, this is the price, and this is quantity axis, and this is the demand curve. Let's assume this is the demand curve. This is the demand curve. This is A point, and this is B point. Let's suppose we have the Z point, something called PZ, and let us assume the values, and let's have the J point, something called PJ and QJ. So suppose this is the 5 and this is 4, and this is 100, and this is 120. Let's assume, okay. अब चलिए शुरू करते हैं। अब पॉइंट मेथड से अगर हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें, इससे सॉरी परसेंटेज मेथड से अगर इलास्टिसिटी कैलकुलेट हम करें, तो व्हाट वुड बी द हाउ वी कैन कैलकुलेट द इलास्टिसिटी। देयर आर टू सिचुएशंस दैट कैन बी यूज्ड। अब सबसे पहली सिचुएशन हो गई कि भाई व्हाट इज द बेस, whether I have to move from A to J or J to A, yes or no। पहला तो सवाल ये हो गया।
तो हम दोनों केसेस में करते हैं. लेट्स मूव. ये इज दिस समबडी जॉइंट? यस. पहले हम कहते हैं Z2J means the situation when the Z is the base price and J is the new price, and there may be a situation when we move from J to Z. Well, J is treated as the base point and Z is treated as a new point. Let us see. अब ध्यान से देखो. तो जब Z से J में जाएंगे तो P की वैल्यू हो गई 5, Q की वैल्यू हुई 100, P1 की वैल्यू हुई 4 और Q1 की वैल्यू हुई 120. इज दैट ओके? और जब हम J से Z की तरफ जाएंगे तो P की वैल्यू हो गई 4, Q is 120, P1 is 5 in this case and Q1 is 100. Now let's calculate the elasticity. Elasticity is nothing but P upon Q into delta Q upon delta P, or elasticity is equals to क्या बात है, इतना लेट स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं. प्रणय खोसला और ये कोई सोलंकी बच्चा आया था, क्या नाम है भैया आप लोगों के? वाई यू हैव ज्वाइंड सो लेट? यस, हेलो स्टूडेंट्स, वाई यू हैव ज्वाइंड लेट? ट्राई टू बी इन टाइम फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स. ओके, this is the what? Now let us see what is the value of P would be 5 and Q is 100 in multiplication with, this is multiplication, in multiplication with delta Q. Delta Q is nothing but if you can measure Q1 minus Q, and that is 120 minus 100 comes out to be 20. This is 20, and delta P is nothing but something called P1 minus P. So this would be 4 minus 5 is minus 1 again. This is minus 1. So 25 or 5 1s are 5. Elasticity comes out to be minus 1. Got it? When we move from point Z to J point, let us see what happens when we move from J to Z. अब J से Z की तरफ हम जा रहे हैं तो क्या है? The formula is the same, P upon Q in multiplication with delta Q upon delta P. So P is in this case 4, Q is 120, and delta Q is, once again let's calculate delta Q. Delta Q is Q1 minus Q, and that comes out to be 100 minus 120, that is minus 20. Delta Q is minus 20 in this case. This is minus 20. Similarly, we can calculate delta P. Delta P is P1 minus P, and this would be 5 minus 4 comes out to be positive 5. So this is 1. So if we calculate, then this would be something called minus 8 by 12. Let's solve this. 4 2s and 4 3s, 2 by 3. Elasticity comes out to be, if I am not wrong, it's 18, 0.67. Hello, approximately minus 0.67 approximately. Yes, sir. This would be the answer. अब देखो, अब ये इसकी लिमिटेशन है. अगर हम एज अ पॉलिसी मेकर देखते हैं तो जो टोटल चेंज है, टोटल एब्सोल्यूट चेंज है, वो तो सेम है भाई. 1 रुपया कम हुआ है और क्वांटिटी में 20 का चेंज है, प्राइस में 1 रुपये का चेंज है. इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है? यस सर. बट जैसे ही हमने बेस प्राइस और बेस क्वांटिटी को चेंज किया, जैसे ही हमने Z से J की तरफ जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं इलास्टिसिटी 1 है. J से Z की तरफ जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं इलास्टिसिटी 0.67 है. यस और नो? तो ये तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया. ये लेस देन 1 होगी, ये इक्वल्स टू 1 होगी.
तो जो पॉलिसी डिसीजन होगा वो तो डिफर कर जाएगा। तो इस केस में व्हाट हैव बीन ऑब्जर्व दैट बिकॉज, अब ये चेंज क्यों आ रहा है इलास्टिसिटी में, दोनों केसेस में चेंज इसलिए आ रहा है बिकॉज यहां जो बेस प्राइस है हमने 5 बाय बेस प्राइस और बेस क्वांटिटी लिया वो 5 और 100 लिया है। यहां जो बेस प्राइस और बेस क्वांटिटी है वो 4/120 लिया है। तो यानी कि ये जो पार्ट है दोनों ही केसेस में, ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज सेम। देखो यहां भी 20/-1 है, तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये यही आएगा -20, ठीक है। यहां अगर देखूंगा -20/1 है तो ये भी क्या आएगा, -20 आएगा। सिर्फ डिफर क्या कर रहा है, ये बेस प्राइस और क्वांटिटी का कंपोजिशन, कि बेस प्राइस और बेस क्वांटिटी जो है ये डिफर कर रही है आपस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. So that Yes. means the limitation is even between the same two points. If you change the movement of direction, whether you are moving from A to B or B to A, or you are moving from Z to J or J to Z, even the directional change will vary the elasticity measured, with this particular method, isn't it? Hello? Hello? Yes, sir. ठीक है। तो वो Yes, sir. डायरेक्शनल चेंज को रिमूव करने के लिए एज अ पॉलिसी मेकर क्या है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ द लिमिटेशन इज द आर्क मेथड और एवरेज प्राइस मेथड, or sometimes you called it as midpoint method. What is being suggested, that it is being suggested for measuring the elasticity even between the 2 points, what we are supposed to do, we are not supposed to take the base price and the new price. They have suggested take their averages, that is P1 plus P upon में 2, take the average price, and same you are supposed to do with the quantity, that is Q1 plus Q divided by 2. That means instead of considering the base price and the new price, it is being suggested that use the average price between the 2 points and the average quantity between the 2 points, and then you measure the elasticity. That is the idea behind the arc method, or what do you call it, the average price method. So the formula comes out to be P1 plus P divided by 2 whole divided by Q1 plus Q divided by 2 into में the other part remains the same, that is delta Q upon delta P, and the method of measuring delta Q delta P remains the same. So if we can simplify it further, then it comes down to P1 plus P divided by Q1 plus Q, because 2 will cancel out, these 2 will cancel out, and we will have delta Q upon delta P. That means if we go by this method, irrespective of the direction of the points, from either we are moving from Z to J or J to Z, we will get the same elasticity. Let's try and do that. Let's try and do that. Well, let me take once again the same points, same movements from Z to J, and then J to Z, and with the same point the price was 5, then this was 100, I think. This is 4, this is Q1 was 120. In this case the P was 4 and the Q was 120, and the P1 was 5 and Q1 was 100. Let's calculate with the average price method. This is P1 upon P upon Q1 plus Q into delta Q upon delta P. If we go by this, we will get E is equals to 5 plus 4 divided by 100 plus 120 in multiplication with 20 upon minus 1. Let's have the minus 1 over here. So this will comes out to be 9 upon
what is this, 220 I think. Hello, multiplying with 20 upon 1. Let's mark the minus sign over here. So I think 20 tens are 20 11s are 11. So elasticity would be something called 9 by 11. You can convert it into the points or the fraction. Let us see what happens in this case. In this case also the P1, we will apply the same formula, and let us see what happens. And delta Q upon delta P, here the elasticity would be 4 plus 5 divided by 120 plus 100 into again 20 by 1 with the negative 20, and let's have negative sign over here, 9 upon 220 in multiplication with 20 upon 1, and again we will reach to the same conclusion. It's 11 I think, minus 9 by 11. Here also we have minus 9 by 11. You can see, just taking the average price and average quantity, we have measured the same elasticity with respect, the measure of elasticity is same with respect to the irrespective of the direction of the movement from point A to B or from B to A. Are you getting my point? Hello? So this is Yes, sir. this is something called arc method. This is something called arc method, or average price method. Price method. Is that okay? Hello? बेटे समझ आया आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड? कोई डाउट या कोई सवाल पूछना चाहते हो आप लोग? यस स्टूडेंट्स? No, sir. तो आज फिर इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है? थैंक यू वेरी मच.